وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی طالبہ، آج ہمارا جو آج کا درس ہے وہ صفحہ نمبر 40 پر ہے. کیا ہے یہ؟ واو معدولہ، یعنی واو معدولہ. معدولہ جو ہے نا، یعنی ایسی واو کو کہتے ہیں جو کیا ہے لکھی تو جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، جیسے خواب. ہم اس کو کیا ہے یہاں پر اگر ہم پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے؟ آپ کو ایک مثال دینے کے لیے ایسا بول رہی ہوں کہ خواب ہے. خواب کو ہم یہاں پر خواب ایسا نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو واو ہے اس کو کیا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے. واو جیسا دوسری لینگویج میں سائلنٹ، ایسا انگلش میں جیسا رہتا ہے کوئی لفظ لکھا جاتا ہے مگر وہ نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح اردو میں بھی کیا ہے واو تو لکھا جائے گا یہاں پر مگر وہ پڑھے گا نہیں، اس کی آواز نہیں آئیں گی، بلکہ اس کے بعد والے حرف کو کیا ہے ملا کر اس طرح سے پڑھنے میں اس کی آواز آئے گی. تو آپ دیکھیے خواجہ کہتے ہیں، خواجہ نہیں کہتے، خواہش نہیں کہتے، خویش نہیں کہتے، خوش پڑھتے ہیں، خالی خوش نہیں پڑھتے. اور خود پڑھتے ہیں، خود میں نے یہ کام کیا، تو خود میں نے یہ کام کیا نہیں پڑھتے. تو اس کو کیا ہے واو معدولہ کہتے ہیں، یعنی ایسی واو جو لکھی تو جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی. تو اب یہاں پر اس کی چند مثالیں یہ دی گئی ہے، جیسے خواب، خواجہ، خواہش، خود، خوش، کیا ہے خیش. خیش اس کی بھی واو کو نہیں پڑھیں گے، خیش پڑھیں گے اس کو بھی. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے نا جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کیا ہے یہاں پر جملے دیے گئے ہیں کہ واو جو جملوں میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. واو معدولہ، جیسا یہاں پر ایک لفظ آیا خود، تو اب یہاں پر خود کو ایک جملہ بنا کر کیا ہے ہم پڑھیں گے، اپنا کام خود کرو. یہاں پر کیا ہے اپنا کام خود کرو. یہاں پر کون سا لفظ استعمال ہوا؟ واو معدولہ کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوا؟ خود کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح کیا ہے سدا خوش رہو. خوش اگر ہم دیکھا جائے گا تو اس کی آواز میں کیا کیا آ رہی؟ صرف کیا ہے خے اور شین، خوش، خے شین پش خوش. اس طرح کیا ہے یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ رہا پڑھنے میں، مگر دراصل کیا ہے لکھنے میں اس کو کیسے لکھیں گے؟ خے واو شین خوش پڑھیں لکھیں گے، خے واو شین لکھیں گے مگر پڑھیں گے کیسا؟ خے اور شین اس کی آواز میں کیا ہے پڑھیں گے ہم. تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے یہ اپنا کام خود کرو، سدا خوش رہو. اماں نے کل ایک اچھا خواب دیکھا. خواب دیکھا، خواب دیکھا نہیں. بعض لوگ کیا ہے پڑھنے میں یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ خواب پڑھتے ہیں، خواجہ پڑھتے ہیں، خواہش پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ واو لکھا جائے گا مگر کیا ہے پڑھا نہیں جائے گا. جی طالبات میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی میم، الحمدللہ. آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہا نا؟ اس کو کون سا واو کہتے ہیں؟ واو معدولہ، یعنی ایسا واو جو کیا ہے لکھا تو جائے گا مگر کیا ہے پڑھا نہیں جائے گا، اس کی آواز کیا ہے نہیں آئیں گی بلکہ وہ سائلنٹ رہیں گا. تو دوسرا لفظ کیا ہے پڑھا جائیں گے، جیسے خود، خوش، خیش، خواب، خواجہ، خواہش، ایسا. تو اماں نے کل ایک اچھا خواب دیکھا، اس میں کیا ہے اس میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ کون سے لفظ میں واو معدولہ استعمال ہوا ہے؟ خواب میم. ہاں، خواب میں جو ہے نا واو معدولہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح کیا ہے نیک کام کرنے کی خواہش کیجئے. خواہش نہیں بلکہ کیا ہے خواہش کیجئے. تو اس میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے واو معدولہ کے ساتھ؟ خواہش میں. ہاں، خواہش میں کیا ہے واو معدولہ استعمال ہوا ہے. تو ان الفاظ کو دیکھیے، میں پھر سے پڑھتی ہوں. خود، خوش، خیش، خواب، خواجہ، خواہش. اپنا کام خود کرو. کیا ہے یہ؟ اپنا کام خود کرو، سدا خوش رہو. اماں نے کل ایک اچھا خواب دیکھا.
नेक काम करने की ख्वाहिश कीजिए। जी समझ में आई आपको? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद जो है सुना, सफ़ा नंबर 41 पर 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ जब लिखा जाता है तो अलग-अलग हो, तो उसको मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे क्या है रूम, इस तरह से हम बहुत सारे अल्फ़ाज़ पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर क्या है 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ को फिर एक मर्तबा दिया गया है, तो हम उसको पढ़ लेंगे। देखिए आप, जैसे कदम, कलम, कसम, भरम, तो बाज़ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो क्या है बगैर जज़म लगाए के क्या है उसको पढ़, जैसे हमने क्या पढ़ा था क्या है दर्स, रिज़्क़, हमने वो पढ़े थे। तो ये क्या है बगैर जज़म लगाए के हम क्या है पढ़ेंगे। जैसे कदम, दाल के ऊपर क्या है ज़बर है, मगर उस पिछले दर्स में क्या था दर्स, रिज़्क़, दर्स बोलते हो, दर्स में क्या है दूसरे लफ्ज़ पे भी क्या है जज़म है, तीसरे लफ्ज़ पे भी जज़म है। मगर यहाँ पर जो 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ हैं उसको क्या है दूसरे हर्फ पर भी क्या है हरकत है, यानी ज़बर है। जैसे कदम, कलम, कसम, भरम, किरण, हिरन, सड़क, भड़क, हुनर, अगर, मगर, शुक्र, चलो, उठो, झुको, रुको। तो इस तरह क्या है यहाँ पर 3 हरफ़ी ऐसे अल्फ़ाज़ यहाँ पर मौजूद है कि जिसको क्या है बगैर जज़म लगाए के यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, यानी दोनों हरफ़ों पर क्या है हरकत मौजूद है, यानी ज़बर मौजूद है। आखिरी वाले हर्फ पर क्या है साकिन है सिर्फ़। तो और क्या है हम आगे जो सबक पढ़ने वाले हैं, तो उसमें देखिए आप 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ साकिन हुरूफ के साथ, यानी बाज़ साकिन हर्फ ऐसे रहेंगे, आप जैसे देखिए यहाँ शर्म, नर्म, गर्म, जुर्म, सर्द, ज़र्द, यहाँ पर क्या है ये जो दूसरा वाला हर्फ है उसको क्या है जज़म यानी साकिन है। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ हैं उनको क्या है बगैर जज़म के यहाँ पर मौजूद है, यानी इनको बगैर जज़म के क्या है, जैसा आम अल्फ़ाज़ को पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे और इन पर क्या है हरकत मौजूद है। जैसे कदम, कलम, मैं एक मर्तबा पढ़ती हूँ, आप लोग क्या है गौर से सुन लीजिए इसको। कदम, कलम, कसम, धर्म, किरण, हिरन, सड़क, भड़क, हुनर, अगर, मगर, ये शुक्र, शुक्र और शुक्र 2 होता है। ये क्या है शुक्र। उसके बाद चलो, उठो, झुको, रुको। अब उसके बाद ये जो 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, उनको क्या है यहाँ पर जुमलों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कदम, कदम, चलो, यहाँ पर कदम भी इस्तेमाल हुआ है और चलो भी इस्तेमाल हुआ है। ये सारे के सारे अल्फ़ाज़ क्या है 3 हरफ़ी अल्फ़ाज़ हैं यहाँ पर। कदम, कदम, चलो। क़ाफ़ दाल मीम कदम, क़ाफ़ दाल मीम कदम, कदम कदम चलो, उठो उठो बढ़ो। क्या है उठो का लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उठो उठो बढ़ो। तो ये जो ठे यहाँ पर आप बोलेंगे सवाल रहेगा आप लोगों का कि इसमें तो 4 हर्फ है ना, आपको सवाल हो सकता है ऐसा। अगर आपको नहीं भी आया होगा तो आप देख लीजिए। तो मैंने आपको इससे पहले 2 चश्मे वाले हे को पढ़ाते वक़्त बोली थी कि उसके साथ जो लफ्ज़ मिलकर आता वो और 2 चश्मे वाला हे, ये 2 मिलकर एक ही हो जाते हैं। जैसे अलीफ, टे, हे एक लफ्ज़ हो गया, टे और हे जो है वो एक हर्फ हो गया। तो उठो, अब यहाँ पर कितने हर्फ हैं? 3 हर्फ क्या है शुमार किए जाएँगे। जैसे उठो, उठो, बढ़ो, मगर आपको दिखने में क्या है 4 हर्फ नज़र आ रहे हैं। मगर क्या है लिखेंगे 4 हर्फ, मगर ये इस्तेमाल में क्या है, हमें जो पढ़ा जाएगा मतलब क्या है टे और हे एक ही पढ़ा जाएगा और क्या है फिर ये ड़े और हे ये एक ही माना जाएगा। इस तरह से झुको में जीम और हे क्या है एक ही लफ्ज़ माना जाएगा। तो ये कायदा है उर्दू का। तो ये 2 चश्मे वाला हे जिसके भी साथ मिलकर आता है वो उसी के साथ क्या है माना जाएगा और उसको एक ही हर्फ क्या है समझ कर क्या है हम लिखेंगे। तो देखिए उठो, झुको, रुको, तो कदम कदम चलो, उठो उठो बढ़ो, सूरज की किरण यहाँ पर हम किरण पढ़े, तो यहाँ किरण इस्तेमाल हुआ है। जंगल का हिरन, हम यहाँ हिरन पढ़े तो यहाँ पर हिरन इस्तेमाल हुआ है। हुनर सीखिए, यहाँ हम हुनर पढ़े तो यहाँ पर देखिए हुनर
استعمال ہوا ہے. ہنر سیکھیے. شکر یہ میرے خیال سے یہ کیا ہے شکر ہے. جی سمجھ میں آ رہی بات طالبات؟ غلطی سے میں نے کیا ہے شکر کہا تو یہ شکر ہے. شکر لیجئے. جی طالبات حاضر ہیں؟ جی میم سمجھ میں آیا میم. ہاں شکر شکر ہے. شکر لیجیے. ہاں کبھی کبھی کیا ہے غلطی ہو جاتی ہے. ایسے عام الفاظ لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں نا تو غلطی ہو جاتی ہے. مگر جب ہم اس کو جملہ بنا کر پڑھتے ہیں تو ہم خود بخود اس کو کیا ہے صحیح کرنے لگ جاتے ہیں. اب جیسا میں نے یہاں پر شکر پڑھا مگر جب میں نے جملے کو پڑھ کر دیکھا تو اس میں کیا ہے سمجھ میں آ گیا کہ لیجئے. شکر کیسا لیتے؟ شکر لیجئے ہوتا. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی جب بھی جملے پڑھیں تو اس کو کیا ہے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ جملہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو شکر پڑھیں گے تو یہ جملہ صحیح ہوگا. تو اس کا خیال کیا ہے آپ لوگ بھی رکھنا ہے. تو اب یہ سارے الفاظ پڑھنے آ گئے آپ لوگوں کو؟ جی میم آ گیا میم. اچھا تو کتنی طالبات آتی ہیں یہاں؟ 7 ممبرس 6 ہے میم. آپ کے جی تو ایک ہی کیا ہے کر کے پڑھیے. ذکیہ فردوس پڑھیے. پہلے والی لائن پڑھیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. قدم قدم چلو اٹھو اٹھو بڑھو. یا پڑھیے. قدم قلم قسم بھرم کرن جو دوسرے ہیں دوسرے طالبہ ان کے بعد کون ہے پڑھیے. کرم. میں پڑھوں میم. کون ہے آپ؟ حسینہ میں. پڑھیے. جی کرن ہنر سڑک سڑک ہے نا. سڑک سڑک سڑک. جی میم سڑک. بھڑک. یہ پڑھیے. ہنر میم. ہاں ہنر. ہنر اگر مگر شکر میم. اچھا آپ کے بعد کون ہے ان کو بولیے. چلو اڑو اڑو رکو رکو. جی میم. یہ پڑھے آپ. رکو. اچھا یہ لائن پڑھیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میں پڑھتی ہوں میم. میرے کو ہر بار بھی چانس نہیں مل رہا. اچھا کون ہے پڑھیے. میں نے کہا پڑھنے کے لیے مگر آپ جی آگے جی میں صفیہ محمد ہے. ہر بار میں چوائس نہیں مل رہا اس لیے اب میں پڑھتی ہوں. پڑھیے قدم پڑھیے قدم چلو یہاں تک پڑھیے آپ. اٹھو اٹھو بڑھو. قدم قدم چلو اٹھو اٹھو بڑھو. جی پورے بھی پڑھ سکتے ہیں میم. نہیں تو اونلی ون سینٹینس. پڑھیے پڑھیے آپ کو موقع نہیں ملا نا اب تک. آپ پڑھیے. قدم قدم چلو اٹھو اٹھو بڑھو. سورج کی کرن جنگل کا ہرن. جی ہنر سیکھو شکر ہنر لیجیے. شکر لیجیے. یہ پڑھیے آپ. ہنر سیکھو. سیکھو ہے دیکھیے. اچھا ہنر سیکھے. سیکھے ہے میم. آپ یہاں لیجیے بولے نا اسی طرح سیکھیے. سیکھیے. ہاں سیکھیے ہنر سیکھیے. لیجیے. ہنر یہاں سیکھیے ایک بار شکر یہاں سے لیجیے. پڑھیے. یہاں سے پڑھیے ایک بار. یہاں سے پڑھو میم. ہوں قدم قلم قسم جی بھرم پڑھیے. کرن کرن ہرن سڑک بھڑک. جی ہنر اگر مگر شکر. جی چلو اٹھو چلو اڑو اڑو جھکو اٹھو نہیں اٹھو اٹھو ہے. اٹھو اٹھو جی
झुको रुको। जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़े। ये पढ़िए आप एक बार फिर। जी पढ़िए। जी मैम। खुद, खुश, ख्वाहिश, ख्वाब, ख्वाजा, ख्वाहिश, ख्वाहिश। ख्वाहिश। अपना काम खुद करो, सदा खुश रहो। अम्मा ने कल एक अच्छा ख्वाब देखा। जी एक काम करने की ख्वाहिश कीजिए। जी बारकल्लाह फिक। आपके बाद कौन है? आपके बाद कौन है तौलिबात में से? शाहिदा बेगम पढ़े। शाहिदा बेगम। उनको आवाज नहीं जाती मैम, वो माइक ऑन नहीं कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ये सफिया जो है। इसके समीना है मैम। आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए। खुद, खुश, ख्वाहिश, ख्वाब, ख्वाहिश है ये। ख्वाहिश, ख्वाब, ख्वाज, ख्वाहिश। अपना काम खुद करो, ये क्या सदा है? खुश ख्वाब। रहो। ये ख्वाब के बाद क्या पढ़े आप? हौज, हौज, ये हौज नहीं, ख्याल खा जीम है जा, क्या होता? हौजा, कैसा होता? खाजा होता। खाजा, सिर्फ वो ही ख्वाहिश। नहीं पढ़ा होगा। अपना काम खुद करो, सदा खुश रहो। अम्मा ने कल एक अच्छा ख्वाब देखा। नेक काम करने की ख्वाहिश कीजिए। जी माशाल्लाह, अच्छा। और कौन है इसके बाद? सफिया, सफिया को बोल रही थी मैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए यहाँ खदम, से। एक मिनट जी, पढ़िए। खदम, खदम, कलम, जी खसम, भरम, किरण, हिरन, सड़क, भड़क, पढ़िए। हिरन, हिरन, हुनर, हुनर हुनर हुनर। है वो। हाँ जी, हुनर, अगर, मगर, सड़क, शक्कर, शक्कर। शक्कर, चलो, उठो, झुको, रुको, कदम कदम चलो, उड़ो, उड़ो उड़ो बढ़ो, उड़ो, उड़ो नहीं, उठो 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 बढ़ो। बढ़ो, उठो उठो। उठो बढ़ो। जी सूरज की किरण, जंगल का हिरन, हुनर जी बोलिए। सीखिए, जी शक्कर लीजिए। जी बारकल्लाह। और कोई तौलिबा है जो नहीं पढ़ी? जी, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट सबक है हमारा, सफा नंबर जो है 42 पर, 3 हरफी अल्फाज साकिन हुरूफ के साथ। यानी यहाँ पर जो हर्फ है वो साकिन है, जो बीच में वाला है। जैसे यहाँ पर पहली लाइन में पूरे रे पर क्या है? साकिन है, जिज़म लगा हुआ मौजूद है। तो अब देखिए हम ये पढ़ेंगे। शर्म, नर्म, गर्म, जुर्म, सर्द, जर्द, गर्द, दर्द, बर्फ, सर्द, फिक्र, शुक्र, हाल, चाल, बाल, शाल। तो ये सारे अल्फाज इसमें क्या है? कहीं ना कहीं पर क्या है? साकिन लगा हुआ मौजूद है। तो साकिन हर्फ के साथ 3 हरफी अल्फाज थे। तो देखिए यहाँ पर शर्म में क्या है? रे पर साकिन है,
नर्म में क्या है रे पर साकिन है, गर्म में क्या है रे पर साकिन है, इसी तरह जुर्म में क्या है रे पर साकिन है और मीम पर भी है। इसी तरह सर्द में क्या है यहाँ पर रे पर साकिन है, जर्द में भी रे पर साकिन है, गिर्द में भी रे पर साकिन है, दर्द में भी रे पर साकिन है। इसी तरह बर्फ, इसमें भी रे है, इसमें भी रे है, इसमें क्या है फिक्र में काफ पर, और क्या है शुक्र में काफ पर, या हाल, चाल, बाल, शाल, इसमें पूरे लाम पर क्या है साकिन है। तो उसके बाद देखिए बर्फ सर्द है, बर्फ ये भी क्या है साकिन वाला हर्फ है, बर्फ सर्द है। रंग जर्द है, जर्द ये क्या है साकिन वाला हर्फ है। क्या है ये तख्त पर गर्द है, तख्त पर गर्द है, ये भी क्या है साकिन वाला हर्फ है। टांग में दर्द है, दर्द ये भी क्या है साकिन वाला हर्फ है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करो, शुक्र करो, ठीक है। तो आप देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर इसको किस तरह से पढ़ना है मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। शर्म, नर्म, गर्म, जुर्म, सर्द, जर्द, गर्द, दर्द, बर्फ, सर्द, फिक्र, शुक्र, हाल, चाल, बाल, शाल। अब ये इन्हीं अल्फाज को क्या है जो साकिन वाले हुरूफ हैं, अल्फाज हैं, 3 हरफे अल्फाज, उनको क्या है जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। बर्फ सर्द है, रंग जर्द है, तख्त पर गर्द है। मैम जी थोड़े उसके मीनिंग्स हमारे को नहीं मालूम है तो आप समझाते हैं मैम। तख्त पर गर्द है, गर्द माने क्या है मैम? उसका गर्द meaning क्या है? मतलब जैसे गंदगी को कहा जाता है, यानी धूल, धूल को कहा जाता है, धूल को, सॉरी, जैसे गर्द वो गुबार बोलते हैं, यानी धूल के जो जर्रात रहते हैं उसको क्या है गर्द कहा जाता है, ठीक है। तख्त पर गर्द है मतलब तख्त पर जो है धूल मौजूद है, इसके वो कहा जा रहा है। जी, टांग में दर्द है यानी पैर में दर्द है। इसी तरह क्या है बर्फ सर्द है, सर्द का मतलब ठंड, यानी ठंडा है बर्फ। इसी तरह रंग जर्द है, जर्द का मतलब है येलो यानी पीला कलर, पीले कलर को क्या है जर्द कहा जाता है। ये क्या है शर्म है, नर्म, शर्म यानी हया को शर्म कहा जाता है, यानी शर्मो हया। इसी तरह क्या है नर्म, नर्म तो नर्म चीज को कहा जाता है। गर्म ये भी समझ में आता है। जुर्म यानी कोई गुनाह, सर्द यानी ठंडा, जर्द यानी पीले कलर को कहा जाता है, गर्द यानी धूल को कहा जाता है, दर्द, दर्द को कहा जाता है। उसके बाद बर्फ सर्द ये भी आपको मालूम है। फिक्र यानी सोच को फिक्र कहा जाता है। शुक्र यानी शुक्र अदा करना। हाल, हाल तो मालूम है। उसके बाद चाल, यानी अब हम किसी लड़की के बारे में कहेंगे कि उसकी चाल और चलन सही नहीं है, मतलब उसका क्या है तौर तरीका सही नहीं है, इस तरह। बाल, ये आमतौर पर जो हम बाल इस्तेमाल करते हैं यानी हमारे सर के बाल वगैरह वो बाल। शाल यानी जो हम ओढ़ने के लिए जिसको चादर कहते हैं उसको शाल भी कहा जाता है, ठीक है। जी और कुछ डाउट है? जी नहीं मैम। तो यहाँ पर देखिए बर्फ, इसमें भी क्या है साकिन है, सर्द इसमें भी। उसके बाद रंग जर्द है, जर्द में भी क्या है साकिन वाला हर्फ है। उसके बाद तख्त पर गर्द है, गर्द में भी क्या है साकिन वाला हर्फ है। टांग में दर्द है, दर्द में भी क्या है साकिन वाला हर्फ है। तो उसके बाद हर हाल में अल्लाह का शुक्र करो। हाल यहाँ पर किस में है साकिन, कौन से हर्फ में है? ये लाम। लास्ट में, लाम। लाम, जी लाम में। आप लोगों को अब लिखना है, लिखना कैसा है आपको मैं एक बार बोल रही हूँ, आपका होमवर्क देखिए। आज हम कितने पढ़े? 3 सबक हम पढ़े आज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये लिखना है। आज कितने तौलीबात? 6 तौलीबात हाजिर है, मैं उन सबका होमवर्क देखूंगी। तो देखिए वाव मादूला कहाँ पर है, आपको ये अब ये पूरा लिखना है। आपको खुद लिख के क्या है यहाँ पर वाव को अंडरलाइन करना है कि ये वाव मादूला है। इसी तरह क्या खुश, खुश लिख कर क्या है उसके वाव के नीचे अंडरलाइन करना है। इसी तरह खैश, इसमें भी क्या है वाव को अंडरलाइन करना है। ख्वाब, ख्वाब में भी क्या है वाव को अंडरलाइन। खाजा, इसमें भी वाव को अंडरलाइन। ख्वाहिश, इसमें भी वाव को अंडरलाइन करना। इसमें क्या है जो वाव इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर उस वाव को क्या है वाव के नीचे अलामत लगा दीजिए।
अब ये पूरा जुमला उतारना है आपको, अपना काम खुद करो। खुद में क्या है आपको, ये पूरे जुमले में कौन सा वाव मादूला के साथ अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, उस अल्फाज के नीचे आप क्या है लकीर खींचेंगे। अपना काम खुद करो, अब इसमें कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुद। खुद। खुद, तो खुद के नीचे क्या है आप लकीर खींचेंगे। इसी तरह सदा खुश रहो, इसमें कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुश खाफ तो इसके नीचे क्या है आप लकीर खींचेंगे। अम्मा ने कल एक अच्छा ख्वाब देखा, तो इसमें कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खाब ख्वाब। ख्वाब को क्या है आप क्या है अंडरलाइन करेंगे यानी लकीर खींचेंगे। इसी तरह नेक काम करने की ख्वाहिश कीजिए, इसमें कौन सा लफ्ज हुआ है मादूला के साथ इस्तेमाल हुआ है, ख्वाहिश। ख्वाहिश के नीचे क्या है आप लकीर खींचेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 3 हरफी अल्फाज जैसे कदम, कलम, कसम, भरम, ये तो सारे हैं। अब आपका सवाल भी ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये भरम में जो 4 हर्फ आपको नजर आ रहे हैं वो 4 नहीं है बल्कि दरअसल 3 ही है। बे और 2 चश्मे वाला ये दोनों मिलकर क्या है एक ही लफ्ज कहलाते हैं, यानी भरम। ठीक है। इसी तरह क्या है यहाँ पर भड़क, बे और ये दोनों क्या है एक ही लफ्ज है। इसी तरह उठो, उठो में से टे और ये है, ये दोनों भी एक ही लफ्ज है। इसी तरह झुको, झुको में भी क्या है जीम और है, ये दोनों क्या है एक ही लफ्ज है। तो इस तरह से इन लोगों को अब यहाँ पर देखिए आप ये पूरे ऊपर के तो वैसे ही उतारना है आपको, मगर जो नीचे आपके जुमले हैं वहां पर कौन सा 3 हरफी लफ्ज है उसको अंडरलाइन करना है आपको। जैसे कदम, ये भी इसको भी आप लकीर कीजिए, ये भी कदम, इसको भी लकीर कीजिए, चलो इसको भी लकीर कीजिए, उठो उठो, बढ़ो, ये तीनों को भी क्या है लकीर कीजिए, यानी अलग अलग खींच के बताइए अलामत इसकी ये है बल्कि। इसके बाद सूरज की किरण, यहाँ पर कौन सा 3 हरफी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किरण। किरण के नीचे आप क्या है लकीर खींचेंगे। जंगल का हिरन, यहाँ पर कौन सा है हिरन, ये 3 हरफी लफ्ज है, इसके नीचे लकीर खींचेंगे। हुनर सीखिए, यहाँ पर हुनर इस्तेमाल हुआ है तो हुनर के नीचे क्या है आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद शक्कर लीजिए, ये शक्कर भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है यानी तजदीद के साथ, मगर उसको 3 हरफी ही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे उसको कि उसके नीचे क्या है लकीर खींचेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है और एक सबक जो है 3 हरफी अल्फाज साकिन हुरूफ के साथ। अब यहाँ देखिए ये पूरे उतारना है, यहाँ पर कैसा है सेम, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, शर्म से मैम। यहाँ से यहाँ तक सेम ऐसे ही उतारना है आपको, मगर जो है ना यहाँ से, जो यहाँ से आपको दिख रहा है बर्फ सरद बर्फ सर्द है, तो इसमें जो है ना कौन कौन से अल्फाज पर क्या है साकिन यानी जज़म लगा हुआ है, आपको क्या है उसको अंडरलाइन किया। जैसे बर्फ, बर्फ इसमें भी क्या है जी बर्फ, तो इसमें भी क्या है आप रे के नीचे क्या है लकीर खींचेंगे। फिर उसके बाद सरद सर्द, सर्द इसके नीचे क्या है आप लकीर खींचेंगे छोटी सी। जर्द इसके नीचे आप क्या है लकीर खींचेंगे। गर्द इसके नीचे भी क्या है आप लकीर खींचेंगे। दर्द, हाल, इस तरह क्या है आपको करना है। जी समझ में आ रही बात। जी ये जी तो मैम। सेम यहाँ से यहाँ तक आपको उतारना ही है। तो ये आपका आज का सबक था। और क्या है, और भी है आपका सबक, अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे तो हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। क्यों अक्सर तालिबात क्यों हासिल नहीं हो रही हैं? जी आप सबको बोलिए थोड़ा, पहले शुरू में बहुत सारी तालिबात आती थी, अब अक्सर तालिबात नहीं आ रही। अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे तो ये सबक भी पढ़ाएंगे क्योंकि वक्त मौजूद है ना। अगर आप नहीं उतना ही पढ़कर हम उसको ही समझेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट क्या है आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई या नहीं? जी सारी तालिबात राजी हैं। जी मैम पढ़ाइए, पढ़ाइए मैम। पढ़ाई या तो ये देखिए ये भी कुछ मुश्किल नहीं है,
सफा नंबर क्या है 43 पर 5 हरफी अल्फाज। जैसे हम शुरू में पढ़े थे 4 हरफी अल्फाज क्या थे, दा दा सा दा ला दा। इसी तरह हम बहुत सारे अल्फाज क्या है शुरू में 5 हरफी अल्फाज भी हम पढ़ चुके हैं। अब उसी को क्या है यहाँ पर दोहराया जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए 5 हरफी अल्फाज में क्या है, अमरूद, क्या है यहाँ पर, अमरूद, अमरूद, मजदूर, 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 बंदूक, संदूक। यानी इसमें क्या है, कितने हर्फ मौजूद है, 5 हर्फ मौजूद है। तालाब, 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 सैलाब, हम पढ़ने में क्या है, तालाब, तालाब, तालाब ऐसा पढ़ते हैं, मगर तालाब, नीलाम, सैलाब, नीलाम, तालाब, बदनाम, बदनाम, आखिरत, आखिरत, आकिबत, आकिबत, आखिबत, फायदा, फायदा, फायदा। खानू, सब इसे देखिए, अमरूद ये क्या है, अमरूद ये एक फल है, अंगूर, ठीक है अमरूद, जी। उसके बाद मजदूर, ये जो मजदूर है, काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या है, मजदूर कहा जाता है, वो मजदूर है। बंदूक जो है, जिसको उर्दू में तमांचा भी कहा जाता है, बंदूक उर्दू में इसको ये भी कहा जाता है। तो पिस्तौल जिस तरह उसको कहा जाता है गन, गन तो इसको बंदूक कहते हैं। इसी तरह संदूक, संदूक जो है हम क्या है कपड़े वगैरह रखकर इस्तेमाल करते हैं, उसको संदूक कहा जाता है। इसी तरह तालाब, तालाब आप लोग जानते ही हैं। सैलाब, सैलाब यानी तालाब में सैलाब आना, मतलब तूफान आने, इस तरह का लफ्ज है ये भी, यानी तूफान वगैरह कुछ आने से सैलाब आ गया ऐसा। तो नीलाम, ये लफ्ज भी इस्तेमाल, नीलाम मतलब शायद इज्जत के ऊपर कुछ दाग धब्बे, इस तरह से कोई लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, यानी मेरी इज्जत क्या है नीलाम हो गई, इस तरह से कुछ लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम, तो ऐसा नीलाम सुनने में आए हैं लफ्ज। तो उसके बाद बदनाम, बदनाम यानी बुरा नाम, उसको क्या है बदनाम कहा जाता है। इसी तरह आखिरत, आखिरत यानी ये दुनिया की जिंदगी है, आखिरत की जो आने वाली जिंदगी है, दूसरी जिंदगी, उसको आखिरत कहा जाता है, जिसके ऊपर क्या है हमारा ईमान है। उसी की तरह क्या है आकिबत, आकिबत के बारे में क्या है अंजाम, अंजाम को क्या है आकिबत कहते हैं। जी समझ में आ रही बात, यानी जो आखिरत में जो हमारा अंजाम होने वाला है उसको क्या है आकिबत कहते हैं। कायदा, कायदा, इसी तरह कायदा है, कायदा मतलब क्या, हर चीज का एक कायदा होता, उसूल होता, तरीका होता, उसको क्या है कायदा कहते हैं। फायदा यानी कोई भी चीज, हमें किसी चीज का क्या है फायदा हासिल हुआ, नफा हासिल हुआ, इस तरह। अब देखिए यहाँ पर अमरूद मीठा है। अब इन 5 हरफी अल्फाज को क्या है हम जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमरूद मीठा है, अमरूद एक फल है और ये क्या है, ये फल मीठा है। तालाब गहरा है, जो तालाब जिसमें पानी हुआ करता है वो तालाब क्या है बहुत अंदर गहराई में तक क्या है गहरा है बहुत ज्यादा, वो बंदूक, कहा गया है। बंदूक संदूक में है, यानी बंदूक को जो है ना संदूक में रखा हुआ, यानी संदूक ये क्या है चीज रखने की लिए क्या है एक डब्बे की शक्ल का होता है, इसको संदूक कहा जाता है। तो जो बंदूक है संदूक में है। तालाब से फायदा भी है, अभी है, जी तालाब जो है तालाब से फायदा भी है। मिसाल के तौर पर क्या है, हमें मछलियां नसीब होती हैं, फिर पानी भी इस्तेमाल के लिए आता है, इस तरह से क्या है बहुत सारे फायदे भी हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, फायदा लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, तालाब भी इस्तेमाल हुआ। इसी तरह अपनी आखिरत की फिक्र आखिरत कीजिए, का सफर कीजिए, फिक्र कीजिए, फिक्र फिक्र फिक्र, 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 फिक्र नहीं फिक्र, क्योंकि ये क्या है जज़म वाला हर्फ है, साकिन वाला हर्फ है, 3 हरफी साकिन वाले हर्फ में इसका इस्तेमाल हुआ, जैसे फिक्र। तो कीजिए, अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। जी समझ में आया। अमरूद, मजदूर, बंदूक, संदूक, तालाब, सैलाब, नीलाम, बदनाम, आखिरत, आकिबत, कायदा, फायदा, अमरूद मीठा है, तालाब गहरा है, बंदूक संदूक में है, तालाब से फायदा भी है, अपनी आकिबत की फिक्र कीजिए। अब उसके बाद देखिए ये भी क्या है 5 हरफी अल्फाज ही है, मगर इसमें क्या है
ये थोड़े अलग अंदाज से। जैसे हम यहाँ क्या पढ़े, तालाब, सैलाब, नीलाम, बदनाम, इस तरह, मगर ये क्या है, नून अलिफ ना के साथ क्या है, यहाँ पर 5 हरफी अल्फाज है। जैसे भागना, जागना, कितने लफ्ज है, जागना, मानना, 5 अल्फाज है। भागना, बे और हे एक ही लफ्ज है। भागना, जागना, मानना, जानना, करना, जोड़ना, तोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, मोड़ना, फूकना, फूकना, भिकारी, शिकारी, शिकारी, जमाही, तबाही। जमाई, तो अब तबाही। यहाँ देखिए, भागना, जागना, मानना, जानना, जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, फूकना, भिकारी, शिकारी, जमाही, तबाही। ये भागना क्या है, जैसे कि भाग दौड़ करते हैं, भागने करने के, इसी तरह के ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, भागना, नून अलिफ ना के साथ, यानी हम आज हमें क्या है, भागना है, इस तरह जुमला इस्तेमाल होता है। जागना, आज रात को हमें जागना है, जागना यानी रात को क्या है, उसके वहीं पे जैसे क्या होशियार बैठने को क्या है, जागना कहते हैं। मानना यानी किसी की बात को क्या है, किसी का कहना मानना, किसी की बात सुन लेना, ये क्या है, मानना। जानना यानी किसी चीज का इल्म नहीं था, वो चीज का इल्म हो गया, तो ये क्या है, जानना। जोड़ना, कोई चीज टूट गई तो उसको क्या है, हम जोड़ रहे हैं। तोड़ना, ये क्या है, कोई चीज अच्छी है तो उसको तोड़ रहे हैं, ऐसा। मोड़ना, कोई चीज है, तार है या रस्सी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। थूकना, भिकारी, जिसको क्या है, हम जो भी मांगते हैं रोड पर, जो भी फकीर हुआ करते हैं तो उनको क्या है, भिकारी कहा जाता है। शिकारी, जो हम क्या है, जंगल में क्या है, परिंदों का शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, वो शिकारी, शिकार करने वाले को शिकारी कहा जाता है। जमाही यानी जिस तरह हम जब जिस तरह छींक आती है, उसी तरह क्या है, जमाई, हम मुंह खोलकर क्या है, क्या है, एक लंबी क्या है, जमाही लेते हैं, उसको ही जमाई कहा जाता है। ये जमाही क्या है, शैतान की तरफ से आती है, तो सिर्फ क्या है, मुंह पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश करना चाहिए, नहीं रुके तो कोई बात नहीं। तो सिर्फ शैतान की तरफ से, ये शैतान की तरफ से आती है, और छींक अल्लाह की तरफ से आती है। फिर तबाही, तबाही यानी बर्बादी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए जुमले में क्या है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है 5 हरफी अल्फाज को। क्या है, सुबह सवेरे जागना अच्छा है। तो 5 हरफी अल्फाज में से कौन सा लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है, जागना, जी बारकल्लाह, जागना इस्तेमाल हुआ है। उसके नीचे आप क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इधर उधर थूकना बुरी बात है। थूकना, जी थूकना, माशाअल्लाह। तो थूकना ये क्या है, 5 हरफी लफ्जों में से है। जमाही लो तो मुंह पर हाथ रख लो। रख लो, जमाही, जमाई, हाँ जमाही, जमाही, जमाही लो तो मुंह पर हाथ रख लो। तो आपको ये पूरे अल्फाज समझ में आएगा, यहाँ पर जागना, यहाँ पर थूकना, यहाँ पर जमाही। तो ये क्या है, 5 हरफी अल्फाज है। ये सारे तौलीबात को पढ़ना आ गया ना, भागना, जागना, मानना, जानना, जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, थूकना, भिकारी, शिकारी, जमाही, तबाही। तबाही, अब यहाँ पर क्या है, ये भी बहुत ही आसान सबक है। इसमें क्या करना है आपको, जोड़कर अल्फाज बनाओ। बिल्कुल ये अल्फाज क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या करना है, देखिए, जीम अलिफ लाम अगर इनको मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, जाल, जीम अलिफ जा, लाम जाल। इसी जाल, तरह क्या है, नाम, नाम, नून अलिफ मीम, नाम। इसी रात, तरह रे अलिफ से, रात, रात, उसके बाद बेदाल रे, बदर, बदर, बदर। जी, बे है, एक ही लफ्ज होता है, बे भूख, है वो काफ, बहवक, भूख, भूख, भूख। आप देखिए क्या बन, इससे क्या लफ्ज बनेगा, सही क्या लफ्ज बनेगा, आप कोशिश करना देख के। अब भूख, जैसे बे है वो का भूख, उसके भूख, बाद नून ए मीम क्या होगा, नीम होगा। नीम, नीम। नीम का मतलब है आधा, नीम गर्म, जैसे हम कहा जाता है नीम गर्म, नीम गर्म पानी, तो इस तरह के नीम के माने आधा। उसके बाद नून वो रे, नूर, 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 नून वो रे, नूर। नूर, जाल,
اس کے بعد کیا ہے؟ नाम चाल, नाम, रात, बदर, धूप, नीम, नूर। नूर। हम्म, आप वहां तक आप लोग क्या है पढ़कर आई इंशाल्लाह। फिर क्या है नेक्स्ट क्या है, ये अल्लाह ये लफ्ज पढ़ेंगे हम, ये सबक पढ़ेंगे और ये आखिरी है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या है जल्द ही हम क्या है सब हिस्सा अव्वल की किताब है जमन इस्लाम की, वो पढ़ने की हम क्या है कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ रही है ना? जी मैम। तो इसको क्या है आप घर में बैठकर क्या है फिर से दोहराना है, और ये पूरे जो आज पढ़े आप उसको वक्त निकाल कर किसी भी तरह से लिखना है, लिखकर बताना है। अब ये जोड़ कर अल्फाज बनाइए, इसमें किस तरह करेंगे आप, ये खुले हुए अल्फाज हैं तो यहाँ पर साइड में आपको एक बॉक्स दे रहे हैं, उसको एक कॉलम है ना, वो कॉलम में आपको क्या है मिलाकर लिखना है, ठीक है? जी मैम। इस तरह से लिखकर बताइए। अब कितनी तालिबात है मैंने यहाँ पर देखा, सबको हसीना है, शाहिदा है, सफिया मोहम्मद है, हरीसा है, और क्या है समीना है और जकिया फिरदौस। ये जी। सारी तालिबात क्या करेंगे होमवर्क करके ग्रुप में डालेंगे बाज़ाब्ता, ठीक है? जी मैम। मुझे ये तालिबात के क्या है नाम भी याद है, मैं इनमें से पूछूंगी भी। जी मैम। जी तो आप लोग क्या है किसी भी तरह से अपना होमवर्क करके लाना है, और जैसा मैंने लिखने के लिए कहा है वैसे लिखकर आप लोग क्या है नीचे लकीर भी मारिए, क्योंकि आप जो सबक पढ़ रहे हैं वो सबक आप समझे नहीं समझे उसमें मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है? जी मैम। इस तरह करिए। और कोई सवाल है आप लोगों को? जी किसी को कुछ सवाल है? नहीं मैम। फिर से आप लोग क्या है घर में अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? दोहरा लीजिए अच्छी तरह से। क्लास के दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।